Okay. It is with immense pleasure that we all are present here today at Nalanda Career Institute to celebrate an outstanding achievements of our brilliant students in their respective examinations. First of all, I want to extend my heartfelt welcome to our principal sir and administrator ma'am, our esteemed parents, our dedicated faculty members, and of course our brilliant students. Again, we are here to celebrate the achievements of our students. A few days back, we had celebrated achievements of NEET students. Today, we have JEE students here with us. And first of all, there is Zaheen, who was earlier selected at NIT Hamirpur. There, he adopted you were doing civil engineering, but he was not satisfied. He some time he thought that he is not made for civil engineering. Then again he appeared in 2024 in JEE exam and finally got selected for IIT Mandi. And congratulations. Now he will be doing MTech physics over there. And our two students, Aman and Gaurav, they were in integrated batch of Bharat Bharati. Thereafter, they took a drop at Nalanda and finally got selected at NIT Hamirpur. And both are doing now electronics and communication, both of you. So very well done. Congratulations, Aman and Gaurav. Today, on this occasion, Riva will also join us. She secured first position in Bachelor of Physiotherapy at MCM Ludhiana. It was a national level entrance examination. Around 42 students got selected, and she managed to get first position in that entrance exam. I think soon she will join us. On this occasion, I would like to welcome parents of Aman and Gaurav. They are here with us. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And I would like to appreciate the efforts of our esteemed faculty. Two faculty members are present here. Gajendra sir and Shivam Dubey sir, teaching you physics and mathematics. So congratulations and very well done. The Bharat Bharati School Administrator, Mrs. Pradyumna Sharma, she is also present here, along with Smriti Ma'am, Coordinator Nalanda. Congratulations, all of you. And Mr. Harsh Bhardwaj, who is looking after the counseling and other affairs at Nalanda. So this is the achievement of Bharat Bharati and Nalanda family, who is growing and achieving. Rajesh is also our family member, and all you students of integrated and dropper batch, all of us like a family. So this is a moment, great moment for all of us. We are here to cherish all together. Thank you. Like to request our principal sir and administrator ma'am to please come and honor our outstanding students. So firstly, let us applaud Zaheen Bhardwaj to come. Very good. And all the faculty members, please come for the group photo here.
along with Mr. Harsh. Ma'am, please do come. Now I would request Principal Sir to share his precious words with us, his valuable insights, so to motivate students and to reflect their journey. इस मौके पे जो दो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ उसमें से एक ये है कि अगर हम मेहनत करते जाएं तो सफलता जिंदगी में जरूर मिलती है, कभी थोड़ा पहले मिलती है और कभी थोड़ा सा हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। अभी जैसे इंटीग्रेटेड बैच में ज़हीन को NIT हमीरपुर मिल गया था, अमन और गौरव को एक ड्रॉप लेना पड़ा, हालांकि वहाँ भी नज़दीक पहुँच गए थे। तो जब आपको लगता है कि आप करीब हो, मंजिल के करीब हो और आपको एक कदम आगे बढ़ाना है तो आप उसके लिए तैयार होते हो, और वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अचीव किया जो वो अचीव कर सकते थे, वो अचीव किया। As I told you, Zahin was not satisfied with his trade, तो पूरी उम्र एक गलत रास्ते पे चलने से बेहतर है कि हम सही समय पे सही रास्ता चुन लें, और मुझे लगता है ज़हीन ने वही किया। इसने M.Tech फिजिक्स चुना एंड आई अप्रिशिएट हिज आइडिया ऑफ ऑप्टिंग IIT फॉर फिजिक्स M.Tech। दूसरे, आप लोगों की मेहनत में आपकी कंसिस्टेंसी का जितना रोल रहता है उतना ही रोल जो है आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, इनकी मेहनत का, ये जो लोग डाउट रिमूवल सेशंस करते हैं उसका आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, उसकी भी भूमिका रहती है। आज हमारे बीच में गजेंद्र सर और शिवम सर हैं। अशोक सर किसी बहुत ज़रूरी कारण से आज यहाँ पे नहीं है इंस्टीट्यूट में, और जो अनिल सर हैं आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हम उनके लिए भी आज उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। एक रोड एक्सीडेंट में उनके कुछ परिवारजनों को चोटें आई थी, काफ़ी सीरियस चोटें आई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों की शुभकामनाओं और दुआओं से, दुआओं का और शुभकामनाओं का असर समझिए या फिर ईश्वर की कृपा समझिए, हर तरह से अभी वो ठीक हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में अनिल सर ज्वाइन कर लेंगे, तो इस मौके पे मैं दुआ करता हूँ फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ हिज मदर एंड सिस्टर इन लॉ, जल्दी शीघ्र ठीक हो और हमारे बीच में यहाँ पे होंगे वो जल्दी ही। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जब भी अभी ये तीसरा लगभग 3 साल का है, नालंदा इंस्टीट्यूट की उम्र अभी 3 साल की है, लेकिन पहले ही साल से नालंदा ने, यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने एफर्ट्स किए, मेहनत की और पहले ही साल से रिजल्ट देने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका विस्तार होगा, काफ़ी ज़्यादा विस्तार होगा। जिस तरह से कि इस साल रिस्पांस और रुझान रहा है नालंदा की तरफ स्टूडेंट्स का, आने वाले दिनों में इसका विस्तार सुनिश्चित है, तय है। तो फिर से आप सब लोगों को बहुत बधाई, और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो IIT NIT और लुधियाना MCM में गए हैं। रेवा जो प्रेजेंट नहीं है, मेरे ख्याल से होगी यहाँ पे थोड़े ही टाइम में। और आप सब लोगों को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छा करें और आप लोगों की जो मंजिल है, जो मुकाम है, उसको आप हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मैम को, प्रतिमा शर्मा जी को, कि वो आए और बच्चों के लिए कुछ शब्द बोले। मैम प्लीज। सभी को नमस्कार। सभी कुछ कह दिया गया है, सर ने काफ़ी बातें की, फैकल्टी मेंबर्स ने, बच्चों ने। मैं जहाँ तक फोकस मेरा रहता, जो मेरा एरिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सबसे पहले तो खुश रहें। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं ये कहती हूँ बच्चों से कि आप खुश रहें। पहली बात है कि अपने आप को सेटिस्फाइड रखें, खुश रहें। उसके बाद ही आप लोग अपने गोल तक पहुँच पाएंगे, जब आप सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे। उसके लिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, लंच लाएं, रोज़ प्रॉपर लंच करें, और जो थोड़ा सा एक टाइम है वो अपनी हॉबीज़ के लिए निकालें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए निकालें।
स्कूल के दौरान नहीं, मतलब क्लासेस के दौरान नहीं, वॉलीबॉल खेलने नहीं जाना, इवनिंग में आप खेलें, डांस करें, गाने सुने, जो भी आप फ्रेंड से मिले उसके लिए भी आप टाइम निकालें। और पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में 10 मिनट लेट आना बिल्कुल ठीक बात नहीं होती, 10 मिनट पहले आना ज़्यादा अच्छी बात रहती है। कि बहुत अच्छी फैकल्टी है, आपका बहुत अच्छा स्टाफ है, स्मृति मैम है आपके साथ, और अब तो हम लोग भी, मैं भी यहाँ पे हूँ, एक दोबारा जन्म मेरा हुआ है और मैं भी आपके साथ हूँ। नालंदा के साथ ही मैं भी दोबारा से ग्रो हुई, मतलब आपको पता ही है शायद। आई वॉज नॉट वेल, बहुत बुरी तरह से मैं बीमार हुई थी, और मैं जब ठीक हुई तो जैसे जैसे नालंदा बड़ा हुआ वैसे मैं भी बड़ी हो रही हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यार, सपोर्ट हमारी हमेशा आपके साथ है। आप खूब आगे बढ़े, बहुत कुछ करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बनाएं और खुश रहें। थैंक यू। प्रीशियस वर्ड्स। आप जब भी आते हैं तो ऐसे मोटिवेट फील होता है हमें भी, एज अ फैकल्टी और स्टूडेंट्स को भी। तो थैंक यू सो मच मैम। तो करूँगा जो हमारे फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी, तो उसमें से पहले गजेंद्र सर फिजिक्स के फैकल्टी वो आए और जो उनका एक्सपीरियंस रहा, ऑब्जर्वेशन रही बच्चों को लेके, वो बताएं। कि आप लोगों ने ड्रॉप लेकर मेहनत कर कर जो अपना एडमिशन सिक्योर किया NIT हमीरपुर में, और जैन ने आफ्टर टेकिंग एडमिशन की, NIT में एडमिशन ले चुका था, उसके बाद भी इसको लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मेहनत इसकी काम आई, इसने और अच्छा किया। और अभी ये बच्चे जो पीछे बैठे हैं, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो इसी फील्ड की, आप इनसे बात करना भी, आपको बताएंगे भी कि इन्होंने क्यों ड्रॉप लिया और क्या रीज़न था कि ड्रॉप लेके इनको लगा कि हम कर पाएंगे। जैसे कि हम गौरव की बात करें, इसका एडमिशन लास्ट ईयर भी हो सकता था, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन रहा, तब नहीं हुआ। और इस साल भी इसको कई बार ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बीच में इसको लगा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, तो शायद ये 2-3 दिन के लिए गायब भी हो गया था कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन ये सबके साथ होगा आपके, है ना। आपको बार बार ये फील आएगा कि नहीं बहुत टफ है, हम क्यों रात दिन ये न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़े हुए हैं, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है। आज हम इनके लिए ताली बजा रहे हैं, कल आपके लिए बजाएंगे। आप भी सब वहाँ पहुँचोगे जिस काम के लिए यहाँ आए हो। तो सिंपल सी 2 लाइन से बात खत्म करूँगा अपनी, कि अगर आप लोग मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। थैंक यू वेरी मच। वुड रिक्वेस्ट हमारे जो मैथ्स के फैकल्टी है शिवम दुबे जी, वो आए और कुछ बोलें। इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने मेहनत करी और ड्रॉप लेकर जिस तरह से इन्होंने मेहनत करी, देन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दीज स्टूडेंट्स। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं JEE की, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। और अभी दिस इज़ राइट टाइम टू वर्क हार्ड। अभी एनर्जी भी है, एवरीवन इज सपोर्टिंग यू, whether it is parents, teachers, and it is not possible every time. After a certain age, no one will support you. Therefore, this is right time to work hard और आप अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छी जगह पहुंच जाओ। हमारा तो यही लक्ष्य रहता है एज अ टीचर, दैट आप अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छे इन्वायरमेंट में पहुंच जाओ। आप IIT में जाओगे तो और अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। तो आप मेहनत करो और आफ्टर 3rd ईयर फाइनल ईयर में तुम्हें अच्छा खासा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, नहीं तो बेटा गुलामी करना पड़ती है जीवन भर। इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छी जगह पहुंच जाओ। I would like to congratulate all the students. Thank you. So much faculty members। और अब जो आज के दिन के स्टार्स है हमारे जो स्टूडेंट्स है, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा और वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, उनके एक्सपीरियंस शेयर करें। और जो एक डाउन पॉइंट भी हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है, वो भी आप सबके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं ज़हीन को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और कुछ बताएं कि ये जर्नी कैसी रही उनकी। सही। तो सबको गुड इवनिंग। मेरा नाम ज़हीन भारद्वाज है। मेरी इस साल एडमिशन BTech में इंजीनियरिंग फिजिक्स में हुई है IIT मंडी में। तो NIT हमीरपुर भी, जब NIT हमीरपुर को मेरा ऐसा नहीं था कि वो कैंपस अच्छा नहीं है या फिर टीचिंग स्टाफ उनका अच्छा नहीं है, पर उस टाइम NIT हमीरपुर में मेरे को लगा कि अभी एक और एडवांस के लिए मेरे पास चांस है देने का।
और तो इसलिए मैंने एडवांस फिर दिया एक बार पढ़ के, तो और फिर मैं एडवांस निकल गया। पर एक दिक्कत ये हुई थी मेरी कि जब मेरा मेंस का दूसरा अटेम्प्ट हुआ था तो उस टाइम मेरी परसेंटाइल काफ़ी ख़राब आई थी पिछले साल से भी। तो उस टाइम मेरे को लगा कि अब तो जब मेरी मेंस भी अच्छी नहीं आई है तो फिर एडवांस में कैसे ही हो सकता है कुछ। पर फिर भी मैंने उसके लिए मेहनत की और मेरा एडवांस भी फिर क्लियर हो गया। थैंक यू। चाहूंगा गौरव को कि वो आए। गौरव ने भी जेई एडवांस क्वालिफाई किया था और जेई मेंस में काफी अच्छा परसेंटाइल था गौरव का। तो गौरव आप आए और बताएं अब आपकी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा तो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को, जिसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट आया। तो इसमें मतलब इस जर्नी में बहुत हुआ। मैं मतलब +1 में बोर्ड्स में था, ऊपर क्या बोलते हैं स्कूल में था मैं उस टाइम। तो मैं +2 में आया था यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स में। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आने के बाद तो बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे कि मतलब +1 का छूटा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मतलब कवर करना बहुत मुश्किल था उसमें। तो +2 में ऐसा हुआ कि मतलब कि दिक्कत आई बहुत ज़्यादा। तो मतलब इसमें फिर थोड़ा मेरे को एंग्जाइटी वगैरह होने लगी थी कि मतलब कैसे कवर होगा कैसे कवर होगा। तो +1 तो मेरी ऐसी थी। तो +2 का थोड़ा बहुत करके मैंने मतलब जेई मेंस का मतलब वो कट ऑफ क्लियर कर दी थी। तो इस साल मैंने सोचा कि मतलब निकल जाएगा, तो मैं ड्रॉप मार दिया था। जो ड्रॉप मारने के बाद फिर मतलब मैंने स्टार्टिंग से तैयारी की। तो उसके बाद मेरे को पता लग गया था कि कैसे कैसे मतलब आगे करना है, मतलब फिर तो मेरे लिए आसान हो गया था। तो जैसे जैसे मेरे को सर बताते थे कि ये करना है, डीपीपी वगैरह करनी है और जो सिलेबस है वो सब करना है, तो मैं करता रहा। फिर मतलब तो ऐसे बीच में ऐसा हुआ कि मतलब मैं 2 सब्जेक्ट के भरोसे था, एक फ़िज़िक्स और मैथ। तो फिज़िक्स और मैथ करने पे मतलब मेरा कुछ नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, और ऊपर से फिर मतलब कुछ रिज़ल्ट में दिक्कत आ गई थी उस टाइम। शिफ्ट में आपने सुना भी होगा शायद कि कोटा बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी उस टाइम पे। तो फिर ऐसे मतलब तीनों सब्जेक्ट करने के बाद ही आपका मतलब आगे कुछ होगा। तो हमारी तरह गलती मत करें कि 2 ही सब्जेक्ट कर लें मतलब उसके बाद। तो तीनों करने हैं आप लोगों को। अमन आप आए और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं अपनी इस अचीवमेंट के लिए डायरेक्टर सर और मैम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी और मुझे इस फील्ड के प्रति प्रेरित किया। उसके बाद मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और अंत तक मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं अपने टीचरों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जब भी हम गए उन्होंने डाउट क्लियर किए और जो भी टॉपिक्स हमारे अनक्लियर रहे थे, जिनमें हमारे को डाउट आता था, वो उन्होंने अच्छे से क्लियर किए। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारी स्मृति मैम का, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है और मेरी मम्मी के साथ मिलकर मेरा पूरा ध्यान रखा है। और आप सभी से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपका कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपकी रिवीजन बहुत ही जो कम टाइम में करेगा। जैसे कि आप एक चैप्टर रिवाइज करते हो तो आपको आधा घंटा या पौना घंटा लग जाता है, 45 मिनट्स इतना लग जाता है। पर अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वही रिवीजन आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, और जो आपका टाइम बचेगा वो आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। और पहले जर्नी तो हमने स्टार्टिंग से ही की थी, पर हमारे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था। फिर हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू किए। उसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए मैं नीट के स्टूडेंट से, स्पेशली नीट वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और जो वो होंगे उसको दोबारा से रिवाइज करते रहे। और जेई वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए। डीपीपी मिलती है वो सारी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसी के साथ मैं यही धन्यवाद देता हूँ। बुलाना चाहूंगा हमारी हिडन जेम को, रेवा उपाध्याय को, कि वो अब हमारे बीच में है।
रेवा प्लीज सिट। सो रेवा ने मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रेवा ने टॉप किया है। एक सीएमसी लुधियाना का एग्जाम होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का, उसमें रेवा का फर्स्ट रैंक आया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर एंड एडमिनिस्ट्रेटर मैम टू ऑनर रेवा फॉर हर अचीवमेंट। तो मेरा ये एक्चुअली सेकंड ड्रॉप ईयर था जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो बेसिकली मैंने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए थे, फिल कर दिए थे ताकि कोई भी रूम ना रहे मिस्टेक के लिए। तो ये वाला एग्ज़ाम उतना टफ नहीं था, इसमें जस्ट एलिमेंट्री साइंस आती है, ठीक है। तो बाकी सारे टेस्ट भी ऐसे ही होंगे जो भी मेडिकल के या नॉन मेडिकल के है। तुम लोगों को बस अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है, ठीक है, और नर्वस नहीं होना है, बस कॉन्फिडेंट रहना है कि हमको बेसिक तो आता है सारा। और बस इतना ही था, जस्ट जीके और इंग्लिश आता है एक्स्ट्रा। और तुम तो 12th के बाद दोगे एग्ज़ाम, ठीक है, तो फिर कुछ भी टफ नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट सिंपली जस्ट कॉन्फिडेंटली देना है उसको, और बस इतना ही है। मैं थी और मेरे कुछ क्लासमेट्स वगैरह थे और जूनियर्स थे जिनकी वजह से बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था यहाँ का। सब कुछ फ़न था, चिल था, और पढ़ाई भी अच्छे से थी, मतलब हार्ड वर्किंग थे कुछ स्टूडेंट्स साथ में। और टीचर्स भी काफ़ी मोटिवेटिंग थे, हमेशा हमको ऐसे काउंसिल करते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो तुमको भी मतलब ओपन रहना है टीचर्स के साथ कि अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि तुमको क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। जस्ट ओपन रहो और क्लियर कम्युनिकेशन रखो, क्योंकि टीचर्स बहुत इन्वाइटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डराएगा तुमको या कुछ भी, ठीक है। तो फिर बस हाँ, टीचर्स के साथ जस्ट ओपन रहना। और यहाँ का अच्छा है, सब कुछ सिंपल है, घर पर है मैक्सिमम, शायद यहीं के कुल्लू के होंगे, तो फिर खुश रहो यहाँ पे लोकल में हो तुम सब लोग, फ्रेंडली है सारा, ठीक है। रेवा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो मैं यही आशा करता हूं जो प्रेजेंट में यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि आप इनसे कुछ मोटिवेशन लें और जो आपका आजकल भी जो चला हुआ है उस पर अप्लाई करें। तो मैं इस फंक्शन को कंक्लूड करना चाहूँगा कुछ 4 लाइनें बोल के, जो कि बच्चों के लिए ही है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो ये बेटा आपकी मेहनत ही है जो रंग लाएगी, और कुछ नहीं है। तो आप मेहनत करो थ्रू आउट योर जर्नी, और इनकी तरह आपके भी रिजल्ट आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।